I welcome you all to today's webinar that is on protection of women and child in the cyberspace. Here to talk about how can we protect women and child in the cyberspace. Now the question comes, why only women and child, why not men? Why this partiality? So the fact is that though crime knows no religion, no caste, no sex, nothing, but women are the one who are the target of cyber criminals because they can be emotionally fooled very easily, and child because they are in such an age and that they do not have much knowledge about what is right and what is wrong, what to do and whom to approach, so they are the best target. I'm thankful to Professor Prabhat Ranjan sir that he agreed to join our webinar as the guest of honor. I welcome Ms. Avni Bahari. She is right now a researcher in Supreme Court. Earlier she had worked in National Commission for Women. She has also worked with the National Commission for Child Rights and various other prestigious firms. We have with us Dipti Pardikindo. Right now she is a researcher, doctoral from IIT Kharagpur. She has also worked as Assistant Director in SIRD as my colleague. We are very much honored to have with us today Professor Prabhat Ranjan. Sir is VC, currently the Vice Chancellor at D.Y. Patil International University, Pune. Sir has been Executive Director at TFAC, Department of Science and Technology. Sir has been earlier Professor at IICT Gandhinagar. Sir has done a lot of research in physics. He has studied physics at UC Berkeley. Sir has studied physics at University of Delhi. Sir has studied physics at IIT Kharagpur. Sir has been awarded with Rani Lakshmi Bai Puraskar from Honorable President of India, and there are lot many more achievements that it will take at least 1 or 2 weeks to elaborate what sir has done for the society. Today we are about to talk about the negative aspects of IT. How it is being used to create problems in people's life. But sir has done a lot of work in science and technology, through which many people who are handicapped, who doesn't have proper limbs and all, sir has come up with a futuristic approach so that they can live properly. Sir has done a lot in 3D printing model. It is my humble thanks to sir, and I really welcome sir to this webinar. And sir has printed the this book on Vision 2035. I had the honor of meeting sir way back in 2012, and I was so impressed. Sir has done work that needs no recognition, and every child should inspire to become like him. Sir has another meeting in schedule today, and I'm really thankful to sir that sir has honored to be the guest of honor of our webinar. Without wasting any time, sir, I would request you to please bless our webinar with your golden words, sir. Over to you, sir. Good. Thank you, Minnie, for inviting. Pleasure, sir. Thank you for coming, sir. I would like to mention that I've been associated with computers for the last 40 years, and I've seen the way computers grown. And first time I came across some kind of a virus was sometime around 1987 and 1988. Yes, sir. And suddenly my computer said that you are stoned. And so since then, actually, things have changed quite a bit. I'm very happy that this event has been organized. Because of COVID, today the use of digital technology has jumped many folds. And whether it's children, whether it's adults, all of them have had to use it. The access to digital technology is very high. And with every technology, while there are advantages, there are also disadvantages. The topic of today's discussion is cybersecurity, especially for women and children. I will try to actually expand the scope of that. And cybersecurity here, I will actually try to expand it to digital technology use. The women and children are especially vulnerable because of emotional attachment they have. And many times these emotional attachments are used to gain trust of a person and then misuse that trust for various things.
I would give a simple example. All of us have these today. We use smartphones and so on, and because of that, it's very easy to take pictures, videos, and so on. And many times we take pictures, videos we don't want to share in public. It's for our own personal consumption. Sometimes we delete it. We think that the information is gone, but actually the information is still there, and people who can get access to this can easily uh, recreate those pictures or videos and use it for various purposes which are not desirable. So many times it happens that we have a phone and we have given it to repair, and even without you knowing, you'll find that it has been the contents have been copied and recreated for by miscreants. And so most of us are not even aware of these things, and naturally we fall, we get into a trap situation. Second thing that happens is that when we are using computers, there are vulnerabilities there. The vulnerability can come through network or through certain softwares which you install on the system, where you may be thinking that you've installed it for a particular purpose, but there may be a spionage going on there, where it may even to the extent that it can take your picture even without your knowing, picture or video without you knowing. And sometimes the softwares can also actually make sure that the camera is taking picture without it being visible. So normally when you have camera on, you will see some lights on, but many times it's possible to pick up that, or even pick up the microphone can be on without you realizing that. So this actually creates a situation where they can get access to private information which was not there. Sometimes we have seen that even devices like Google Home and so on, which are omnipresent nowadays, they keep listening to every voice, that sound that you make in the room. And sometimes it has been also reported that these have been used for uh, not the right purpose. They're not supposed to be stored, but actually many times there have been reports of these being stored. Third thing that I would like to mention is that many times we receive mails or messages promising something which sounds very unreasonable. So I would like to say that if you don't deserve some hundred millions of dollars because you've not done anything for that, assume that it is trying to fool you and it's a scam of some kind. So if somebody sends you mail that we are willing to share X amount of money with you because somebody has left this money for you or something like that, or like I've received sometimes mails that there's a person who's dead and his property is worth hundreds of millions of dollars, and we have done research and we found that you are the next of kin to this person, and so we would like to share this, and but lawyers will have some amount of money and so on and so forth. We like to transfer to your bank account, and then basically they try to get access to your trust, and then they try to get money from you while you think that you're going to get $100 million, but actually you turn out losing that. So we have to be extremely careful about this as to what links you click on. When you click a link, first you must make sure that when you take your mouse over that, you will see that the underlying link that it shows up. And you will find that on the top, it may be saying, let's say like your bank, but inside that will take you to some other site. So you can always find out where it is hyperlinked to, and we can actually make sure that we are not clicking on some link. And sometimes when you click on these links, it will take you, for example, to your bank. It will look like exactly your bank website. You're putting your username, you're putting your password, but actually it's all being captured. So you have to be extremely careful on clicking on these messages, which may come to you through Facebook, through WhatsApp, through emails, and avoid that. One more thing that happens is that when you receive mail sometime, you may see somebody claiming that they have compromised your password and they're again going to reveal sensitive information to public. It's very common nowadays to be able to get certain passwords because you go to many websites and so on. And actually you may have to fill certain information. Sometimes you create an account there. And also there have been old passwords that sometimes you are no longer using, but they may leak out and they will send you a copy of that particular password saying that we have found this thing.
and unless you contact us and so on and so forth, we are going to release certain sensitive information. Most time it is desirable that you do not respond to such emails. Their first goal is to get you to get talking to them. So these things are, one has to be extremely careful in today's world. And your smartphone or your laptop or computers can be dangerous in this sense. Personally, for example, I avoid using Windows on my laptop. Right now, so I'm talking from Linux, which is a much safer option. And I've been using this for last almost 27 years actually. While there's disadvantage of these kind of things, of course, the advantages are very clear that we have been using digital technology for quite some time. Today, we go to market. For example, to go to vegetable market, we don't carry cash, we are paying digital money, and COVID has brought that in before. The demonetization that happened a few years back, that also helped in this process. But at the same time, the technology has other advantages. I remember one case where a girl who had lost part of her hand was chopped off because there was an accident. Something moved over her hands for some reason that I'm not aware. And she was working she was from Haryana. She was working in Gurgaon in a multinational corporation. When she came home, her parents tried to force her into marrying somebody, which she wasn't sure. So they locked her in the room, took away her smartphone, and that they won't let her go to office anymore. Luckily, laptop was there with her, and somehow she could connect with me on the internet through chats, and then I could help her out so that she could get out of this difficult situation. So technology has many advantages, but at the same time, safe use of technology is very, very important. And I'm very happy that this particular topic has been picked up, especially with focus on women and children. I wish that experts that you're going to be listening to are very experts in their field. And I'm sure that a lot of tips that they're going to share would be very valuable. So I will stop at this point. Thank you very much. Thank you so much, sir. It's really, I mean, in a short span, you have explained almost everything that one has to be careful when one is online. And so, whatever you have done in the field of technology is unparalleled achievement that hardly any person can dream of. And you have brought a great change to the society. We are really thankful to you, sir, as a whole, and particularly for joining this webinar, sir. We are very thankful, and we are really honored that you joined our webinar. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. I will be around for some time and then I will leave. Thank you so much, sir. In a very short time, you have explained in detail what all needs to be done to stay safe in the cyberspace. So, we really thank you so once again for joining us and giving your valuable advice and time to us. I am sure all the participants must have been benefited with your advice. Moving on, I request Dipti Paridhikindo to please give a presentation on various cyber crimes and how to stay protected. Dipti, over to you. Thank you, Mayuni ma'am, for inviting me for this webinar. So now I want to give my presentation regarding social media cybercrimes, precautionary measures for females. Nowadays, there is so much of social media cybercrime. So I have framed few of the points for which precautionary measures should be taken. So which are as follows. बात करें तो हम कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आइदर वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी तरह से अपने जो पासवर्ड्स होते हैं हमारे वो शेयर ना हो। कोई सोशल मीडिया में फ्रेंड हो या कोई कांटेक्ट हो या आपको लगे उससे ज़रा सा भी डाउट कि ये आपको स्टॉक कर रहे हो या हैरेसमेंट का सीन हो सकता है, आपको उससे कुछ रिस्क है, so always block that person you don't want to interact with. So ये कुछ basics point है. बहुत बार क्या होता है हमें पता होता है, but these are the basics which we should always keep in our mind जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं. So अगर मैं बात करती हूँ, ओके प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लिया, फिर भी इन केस अगर कोई हमारे साथ अनहोनी होती है या फिर कुछ ऐसे अनवांटेड से ऐसे केसेस होते हैं, so सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना चाहिए? We can't sit it, we have to stop this chain. So how to report a cyber crime in India?
सो इस ऐप जो भी सोशल मीडिया है उसमें आप देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंट ही है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, इवन इन फेसबुक, इवन इन इंस्टाग्राम। तो वो आप उसमें ऑप्शन भी आता है कि आपको क्यों लग रहा है ये फेक है, आइदर द पर्सन इज डेड, आइदर द पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हो उस अकाउंट में। मैंने पर्सनली बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स के लिए कंप्लेन किया है एंड फेसबुक उस पर एक्शन लेता है 24 to 48 आवर्स, एंड उसके बाद जो भी एक्शन लिया गया है वो इवन उसका अपडेट भी मेरे पास आता है। नेक्स्ट थिंग इज, जब मैं हर स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे एक साइबर क्राइम सेल होता है, हमारी मिनी मैम भी उसमें रही है, सो आप उस साइबर क्राइम सेल में तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। Thank you so much, Dipti. Moving on, we have a very much talented and a great legal expert with us, Ms. Avni Bahri. I would request her now to kindly enlighten this participants of the webinar with what are the legalities and how can we stay legally safe in the cyberspace. Over to you, Avni. A very warm welcome to distinguished speakers and wonderful audience. First of all, I would like to take the opportunity to thank Minnie for inviting me on such a podium and to speak about a very pertinent issue, that is cybercrime against women and children. Let us first understand what is cybercrime. So, cybercrime is any illegal or unlawful activity that uses the computer, the internet as a tool, source or target for commission of the crime. Certain examples of cybercrime are morphing, which is an activity which edits your original picture to misuse it. उसके बाद है फिशिंग, एक है जिसमें आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, लाइक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. देन इज ईमेल स्पूफिंग, यू नो द ईमेल इमर्जेस फ्रॉम वन सोर्स बट इट इज डिलीवर्ड एट सम अदर सोर्स. इसके अलावा है डेफमेशन, इज लाइक आपके बारे में कोई बदनामी फैलाता है, ऑनलाइन पोस्ट करता है. देन इज साइबर स्टॉकिंग, यू नो कोई आपका फॉलो करता है ऑनलाइन कि आप किस टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, आप कौन से पेजेस एक्सेस करते हैं, कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, कोई ये पूरी एक्टिविटी मॉनिटर करता है. इसके बाद है ट्रोलिंग. आपने आजकल देखा होगा कि कोई कुछ भी पोस्ट करे, लाइक एक्स एक्ट्रेस वाज ट्रोल्ड बिकॉज शी वोर समथिंग, और किसी सेलिब्रिटी ने कोई ऐसा व्यू कर दिया, पीपल आर ट्रोल्ड, यू नो उसकी वॉल पे क्वारलिंग और अपसेटिंग रिमार्क्स पोस्ट किए जाते हैं. इसके अलावा women and children are abused for voyeuristic pleasures, you know they're harassed online for voyeuristic pleasure, that is cyber pornography. So ये कुछ टाइप के cyber crimes हैं. So with the advancement of technology and increased use of internet, there has been a spike in the number of cybercrime in India. अगर हम Microsoft की एक स्टडी देखें तो उसमें India comes as number 3 when it comes to cybercrime. So it affects, so if you see, you know, whatever I've mentioned, whatever examples of cybercrime have given, it affects you and me, it affects equally. आपको, मुझे, हम सबको ये equally affect करते हैं. But when it comes to women and children, you know, they are the most vulnerable and the worst affected. तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा, ऑनलाइन ट्रोलिंग और ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. So India has certain laws in place. हमारे पास कुछ laws हैं in place. So India is one of the very few countries to enact the Information and Technology Act. So इस act के द्वारा cyber bullies और stalkers को punish किया जाता है for invading the privacy. The act was amended in 2008 and child pornography was also made a crime under the act. इसके अलावा the act per se does not talk about safety and security of women on the online platform. So इसके अलावा हमारे penal provisions हैं जो हम यूज़ करते हैं for punishing such people. So अगर हम देख, हो गया stalking, हो गया both online and offline, voyeurism हो गया, ये सब punishable acts हैं. And then section 290 which talks about committing any public nuisance. 292 talks about sale of obscene books. 292A talks about printing, publishing obscene matter. 293 talks about, you know, selling of any obscene content to children. So ये सब कुछ हमारे इंडियन पेनल कोड में है which are penal provisions and punishable under the law. बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कानून का होना, उनका जानना और उनका इस्तेमाल करना तीनों अलग अलग बातें हैं. So when we talk about cyber crime and we see the rate of reporting, it is quite less. Because मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे बहुत डरते हैं अपने पेरेंट्स से बताने में कि कोई साइबर क्राइम, दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय साइबर क्राइम इन सम वे और द अदर, बट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस उनको लगता है कि उनका इंटरनेट बंद हो जाएगा.
अगर वो घर पे बताते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्केयर, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट. एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा. एक तो पुलिस स्टेशन जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा स्टिग्मा है. उनको लगता है उनकी बदनामी होगी. दे आर ऑल्सो वेरी स्केयर फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, फैमिली, वेरेवर. So one thing which I really feel is like there's a lot of awareness required in terms of not just how to use your online content, but also that how, where and when whom to approach. कि जब भी कभी आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप किसको और कैसे अप्रोच करें. सो इसके लिए द फर्स्ट थिंग इज आई थिंक प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाता है, जिसपे उनका एक पोर्टल है. आप वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं और वो कंप्लेंट बिल्कुल एनोनिमस होगी. आप किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कंप्लेंट की. इसके अलावा आप अपनी स्टेट विमेन कमीशन या फिर नेशनल विमेन कमीशन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑफकोर्स पुलिस तो है ही. इसके अलावा आपकी स्टेट साइबर यूनिट होती है, आप उसको भी कांटेक्ट करके कंप्लेन कर सकते हैं. पर कंप्लेन करना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. यू नो, इफ़ यू हैव बीन विक्टिमाइज्ड ओवर द इंटरनेट, ओवर द सोशल मीडिया, यू हैव टू कंप्लेन. इट इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट बिकॉज आज आप हैं, कल को कोई और हो सकता है. और प्लस ये ऑनलाइन क्राइम कब ऑफलाइन क्राइम में कन्वर्ट हो जाए ये पता नहीं चलता. सो आई हैड दिस फ्रेंड वंस, शी वॉज अलोन एट होम एंड शी वॉज गेटिंग बोर्ड. तो उसने पब्लिक पोस्ट किया कि यू नो सिटिंग एट होम एंड गेटिंग बोर्ड. And after that she received somewhere around 200 comments of asking about her address and personal details so that people can come in. So we have to be very very vigilant of what we talk, of what we post online. So I feel there is a need to generate consciousness and awareness online कि क्या हम पोस्ट करें, कैसे पोस्ट करें. एंड वी हैव टू बी वेरी 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 विजिलेंट ऑनलाइन वट एवर वी आर डूइंग एक्टिविटी, बिकॉज प्रेडेटर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं. एंड इफ यू डोंट कंप्लेन इट ओनली एनकरेजेस द प्रेडेटर्स to make someone else the victim. Thank you. Once again, I would like to thank Professor Prabhat Ranjan, Avni Madam, and Dipti for being a part of this webinar. Dipti, you have explained the brief in a very nice way, and Professor Prabhat Ranjan has explained in just all the do's and don'ts in social media platform. So coming to why I chose this day because this is International Day of the Girl Child. ये हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस है. तो ये दिन सबसे बेहतर है कि हम बैठे और डिस्कस करें कि किस तरह से हम अपने राष्ट्र के बालिकाओं को एक सुरक्षित साइबर स्पेस दे सकते हैं. यदि हम बात करें आंकड़ों की तो पिछले एक वर्ष में साइबर बुलिंग जो खास करके महिलाओं के साथ किया जाता है या टीनेजर्स के साथ किया जाता है, तो उसमें देखी गई है कि 36% बढ़ोतरी पाई गई है. ये एक सिंपल सी कहानी है, ये नेम चेंज करके मैं बता रही हूँ जिनसे मेरी वार्ता हुई. तो श्रेया सिंह हैं, जो इनका उम्र है 21 वर्ष. जब वो 12 वर्ष की थी तब से उन्हें उनका एक बैचमेट हर एक एक्टिविटी को कवर करता था, फ़ोटोज़ लेता था और एक फेक फेसबुक उनके नाम से खोल रखा था. लेकिन ये बात श्रेया को पता नहीं थी. बहुत दिनों के बाद श्रेया को इसके बारे में पता चला. शुरुआती में उसे लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फेक खोला है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बहुत ही जल्द उसकी फ़ोटोज़ वगैरह को मिसप्लेस करके, कुछ फ़ोटोशॉप करके, उसको अनहेल्दी वे में दिखा के इतना परेशान किया गया उसे कि फाइनली उससे मेडिकल हेल्प लेना पड़ा. डिप्रेशन हो गया और उससे लड़ने के लिए उसे अपना स्कूल तक चेंज करना पड़ा. तो ये तो मैंने एक बात किया. लेकिन लगभग 50% ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि रिपोर्टेड ही नहीं होते. क्यों नहीं रिपोर्टेड होते हैं? क्योंकि बच्चों को खुद ही नहीं पता होता है कि वो एक साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं. और बहुत सारे केसेस में अगर महिलाओं की बात करें तो जो एवरेज एज पाया गया है जिनके ऊपर ये क्राइम सबसे ज़्यादा है वो है आपका 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स ओल्ड तक की महिलाएं इसकी सबसे ज़्यादा विक्टिम बनती हैं. तो कहीं ना कहीं पहली बात तो वो अपने पेरेंट्स या एल्डर्स से ये डिस्कस ही नहीं करती हैं, इसीलिए 50% क्राइम्स अनरिपोर्टेड जाता है. और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो विक्टिम अगर जाता है एफआईआर करने, तो अगर उनको ऐसी समस्या आती है कि रजिस्टर नहीं हो रहा है एफआईआर, तो उस केस में आप सेक्शन 156(3) का यूज़ कर सकते हैं और एक मजिस्ट्रेट के पास अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. साइबर क्राइम जो
होता है वुमेन के साथ, उसमें 74% ऐसे हैं वुमेन जिनको किसी ना किसी को ब्लॉक करना पड़ता है। 20% साइबर क्राइम ऐसे विक्टिम्स होते हैं जो कि इस प्रताड़ना से तंग आके अपना ऑनलाइन अकाउंट्स ही बंद कर देते हैं। ऑनलाइन वायलेंस सबसे ज़्यादा 18 से लेके 30 इयर्स तक की महिलाओं के साथ किया जाता है। तो अब मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहूँगी, आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं, कि आप अपना पासवर्ड सेव कैसे करते हैं? आपको क्या लगता है कि आपका डेटा कितना सेफ है? जो भी डेटा आपने मोबाइल में रखा हुआ है, आखिर वो कितना सुरक्षित है? तीसरा प्रश्न मेरा आपसे होगा, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी, आपके मोबाइल पे कितने ऐप्स हैं और कितने यूज़फुल ऐप्स हैं वो सारे? जब कभी आप कोई एक न्यूज़ देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो आप कैसे वेरीफाई करते हैं कि वो सत्य न्यूज़ है या असत्य न्यूज़ है? या फिर जैसे न्यूज़ आया एक्साइटमेंट में आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो होक्स जिसे कहते हैं वो इसी तरह का फैलता है, जिससे लोग पैनिक हो जाते हैं। जब वो पैनिक होते हैं तो उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और वो तुरंत डर से उनके लगता है कि अरे अगर मैंने जल्दी से ये मैसेज अपने दोस्तों तक नहीं दिया तो कहीं वो फंस ना जाए, और इसी तरह से वो गलत न्यूज़, उनको पता नहीं चलता कि वो एक फेक न्यूज़ के करियर बन रहे हैं। तो इसीलिए कभी कोई मैसेज अगर आप देखें सोशल मीडिया में तो सबसे पहले उसे चेक करें। और चेक कैसे करेंगे आप? उसके वैलिड वेबसाइट पे। अगर मान लीजिए कोई बिजली से रिलेटेड न्यूज़ है तो आप बिजली विभाग में देखिए, तो आप रिलेटेड वेबसाइट, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे फ़ोन कॉल करके जितने भी आपके पॉसिबल है, ट्राई ऑल द मीन्स एंड मेथड्स, वेरीफाई कीजिए। जब आप संतुष्ट हैं कि ये सही न्यूज़ है तभी आप उसे फॉरवर्ड करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 ऐसा क्राइम सोचे आप साइबर जो ऑनलाइन हो सकता है, या फिर आपने कोई क्राइम जो सुना है अब तक इंटरनेट या फिर फ़ोन या फिर न्यूज़ किसी के माध्यम से, तो सबसे स्कैरी आपको क्या लगता है? और आखिरी यही है कि आपको क्या लगता है कि आज के इस वेबिनार से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बारी है। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे अपना मोबाइल 1 घंटा, छोड़िए 1 घंटा नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, क्या आप हमें देंगे? नहीं देंगे। तो आप सभी समझदार हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स की जो हमारी आंखें खुली की खुली छोड़ दे। आज के डेट में किसी भी गली कूचे से आप बड़े आसानी से ड्रग्स वगैरह आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में डार्क वेब बहुत प्रचलित हो चुका है। एक डार्क वेब खोलना एक बच्चों का खेल बन चुका है। मतलब जो आप नॉर्मल जो बनाते हैं वेबसाइट, उसमें जितना एफर्ट लगता है उससे भी बहुत ही कम एफर्ट में अब डार्क वेब बन रहा है और हर गली कुचे में इस तरह से होता है। तो आखिर सरकारें इसके बारे में कुछ करती क्यों नहीं है? सरकारें इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये जो है वो सर्वर पे कहीं होस्ट नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होस्ट होता है, और जैसे ही वो लैपटॉप अगर बंद हो जाता है मतलब वो वेबसाइट नज़र आना भी बंद हो जाता है, वो अनरीचेबल हो जाता है। तो यही एक कारण है कि जो गवर्नमेंट कुछ भी बंद नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि डार्क वेब पे हम बहुत सेफ हैं, अच्छा है, कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं डार्क वेब के ऊपर, और बहुत लोगों का यही मानना है, रिसर्चर्स का, कि डार्क वेब इसीलिए खुला छोड़ा गया है ताकि क्रिमिनल्स वहाँ पे फ्रीली जाएं, फ्रीली गलत काम करें और पकड़े जाएं। तो इसी में एक उपलब्धि अच्छी मिली है पुलिस को। 61 अरेस्ट किया गया है डार्क वेब पे, जो कि अलग अलग तरह से गलत काम में इन्वॉल्व थे, जैसे ड्रग्स, फायर आर्म्स, ये सब में इन्वॉल्व थे, तो उसे उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो ये है आपका डार्क वेब का सिनेरियो।
एटलीस्ट 96% जो हमारा कंटेंट होता है वेब का वो डीप वेब और डार्क वेब का मिक्सचर है। सिर्फ 4% जो है वो सुपरफिशियल वेब है, जिसमें हम लोग गूगल करते हैं या फिर याहू पे कुछ सर्च करते हैं, गूगल पे जो करते हैं, तो ये सब आपका केवल 4% है जिसे हम सुपरफिशियल वेब कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डीप वेब, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेटा इत्यादि स्टोर रहते हैं। और डार्क वेब जो है, जो एनोनिमस ब्राउज़र टॉर को यूज़ किया जाता है, अब मोस्टली इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए जाते हैं। ये एक आपका दिया गया है कि किस तरह से मालवेयर्स के जरिए आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से आप ही अपना डेटा खुद हैकर्स को उपलब्ध करवाते हैं और कितने कम दाम में वो डार्क वेब पे बेचे जा रहे हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं तो आप उसका टर्म्स कंडीशन जरूर पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्विटर इंस्टॉल किए हैं तो आप उसमें पढ़िएगा, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी डेटा है वो थर्ड पार्टी को वो सेल कर सकता है। उसके लिए आपको डिसेबल करने के लिए एक बटन आती है, उसे आप डिसेबल कर लें। अगर आप डिसेबल नहीं करते हैं, मतलब आपने उसे खुली परमिशन दे रखी है कि आप थर्ड पार्टी को आप भेज सकते हैं डेटा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डेटा जाता है तो आपका सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक मालवेयर है जिसका नाम है एजेंट स्मिथ मालवेयर, और इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं मोर देन 25 मिलियन डिवाइसेस, मोस्टली इन इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, इवन इन यूएस, यूके। तो ये करता क्या है, ये आपका एक दिखने में आपको लगेगा कि गूगल से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, और एक बार ये मालवेयर अगर आप किसी तरह से इंस्टॉल हो गया आपके डिवाइस में तो वो आपका रिप्लेस कर देगा कोई भी एप्लीकेशंस लाइक योर व्हाट्सएप, फेसबुक, इसको आपको रिप्लेस कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसमें मलिशियस वर्जन डाल देगा और आपको एड्स दिखाएगा, फ्रॉडुलेंट एड्स, और उस आपको लगा कि एडवर्टीजमेंट है, आप उसे क्लिक करोगे और जो भी आप मनी आप दोगे वो आपका जो हो जाएगा वो आपके क्रिमिनल्स के पास जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है इंटरनेट पे एक नकाब लगा के कोई भी क्राइम कर लो, पैसे कमा लो, किसी को परेशान कर लो, अपने ग्रजेस पूरे कर लो। तो आपको गलत लग रहा है। अगर आप इस भ्रम में हैं तो इस भ्रम से बाहर निकले, क्योंकि अब जो है इंडियन पुलिस भी काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है और इस तरह के ऑनलाइन क्राइम्स में काफ़ी सारे गिरफ्तारी भी हो रही है। जैसे ये जो न्यूज़ में अभी जो भी बताऊंगी आपको, ये सब आपके 2-3 दिन पहले तक के न्यूज़ हैं। जैसे पोस्को केस फाइल किया गया एक व्यक्ति के ऊपर जिसने पोर्नोग्राफिक कंटेंट बच्चे का ऑनलाइन डाला है, उसका लोकेशन भी पता चल चुका है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में साइबर क्राइम 600% इंक्रीज़ हो चुका है 2 साल में, जिसमें कि ज़्यादातर है आपके यूपीआई फ्रॉड्स। जैसे कोई जो हैकर है वो आपको एक कोड भेजेगा, बोलेगा कि अच्छा ठीक है ये कोड है, हम आपसे कुछ सामान लेंगे, आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अभी टेस्ट के रूप में मैं आपको अभी कुछ पैसे दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप वो करेंगे स्कैन और आने के बजाय आपके यूपीआई से पैसा कट जाएगा। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा ही यूपीआई फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोन के नाम पे, जॉब के नाम पे फ्रॉड्स हो रहे हैं। सोशल मीडिया रिलेटेड ऑफेंसेस, जैसे किसी का फेक अकाउंट बनाना, किसी को ऑनलाइन बुली करना। तो आप जब भी लोन का प्रपोजल देखें तो आप उस पर जंप ना करें। जॉब कोई देखें तो उस पर जंप ना करें, आप प्रॉपरली पहले वेरीफाई करें सारे प्रोसेस को और फिर ही इस पर आप जाएं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इतने सारे सुनने के बाद कि चलिए जिसको ज्ञान नहीं है वो फंसते हैं, लेकिन एक पुणे टेकी ने अपना 9.7 लाख एक सोशल मीडिया फ्रेंड को दे दिया। तो इस हादसे से आप ये समझ सकते हैं कि नॉलेज और प्रैक्टिस ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको बचना है अगर क्राइम से, तो केवल आपका टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आएगा, आपको रियलिस्टिक भी होना होगा
और आपको चीज़ों को सही से समझना होगा। और वुमेन क्योंकि ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती हैं, मतलब उतना दिमाग से नहीं सोचती हैं, तो इसीलिए वुमेन आर द प्राइम टारगेट। एक तेलुगु मैन ने एक फ़ोटो को मॉर्फ करके डाला, अपलोड किया और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसी तरह बीजेपी एमएलए के अगेंस्ट फेक अकाउंट बनाया गया था और उस क्रिमिनल को भी अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई में 400 ई क्राइम्स हुए हैं लॉकडाउन के स्टार्टिंग में, और साइबर क्राइम जो है उड़ीसा में 76% इंक्रीज हुआ है। कॉनमैन एक नाम का हैकर ग्रुप है जिसने एक बेंगलुरु हॉस्पिटल बैंक का अकाउंट से पैसे डाइवर्ट करके किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 17 lakhs, और उसमें जो उन्होंने टेक्निक यूज़ किया था वो सिम कार्ड क्लोनिंग। तो आप भी सतर्क रहें, सिम कार्ड को हमेशा आप लॉक करके रखें, सिम लॉक करके रखें ताकि आपका सिम क्लोनिंग ना हो। कैसे करना है वो आगे की स्लाइड्स में मैंने बताया हुआ है। मोहम्मद असीम arrested by cybercrime division for sharing morphed images to harass female BJP workers, 26 social media posts deleted। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक तरफ तो आपको ये दिखा रही कि क्राइम्स किस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखा रही है आपको कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो जो क्रिमिनल जो हैं वो बच नहीं सकते हैं। अब इतने सारे केसेस होने के बाद जिसमें जो मेजॉरिटी रहता है वो फेक अकाउंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन जो होता है, तो इसीलिए एक प्ली डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मांगा गया है कि जो भी फेक अकाउंट्स रोकने के लिए एक KYC मांगी जाए। जो भी उसको अकाउंट्स खोलना चाह रहे हैं उनसे एक KYC की मांग की जाए ताकि इस तरह के फेक अकाउंट से जो लोग भ्रमित हो जाते हैं उस पर एक नकेल कसी जाए। अब बात कर रही हूँ मैं बहुत ही इनफेमस बॉयज़ लॉकर रूम, जो कि काफ़ी कुछ कह रहा है हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों की भविष्य के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, वो किस मानसिक स्थिति में है आजकल उसके भी बारे में। इसमें क्या था कि एक 12 क्लास के विद्यार्थी ने जो कि 18 वर्ष का था, उसने एक इंस्टाग्राम पे बनाया एक ग्रुप जिसका नाम उसने रखा बॉयज़ लॉकर रूम, और उसमें वो फिर गलत मैसेजेस डालते थे। जो बच्चियाँ थी 13 साल की, उनकी फ़ोटोज़ लेके उनको मॉर्फ करके उसे सर्कुलेट करता था। तो उसी में से ये कुछ लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेके FIR किया और उसमें अरेस्ट भी हो गया एडमिन। तो जो भी एडमिन है स्पेशली आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के सब, वो लायबल होते हैं अगर उनके फ़ोन जिसका वो एडमिन है अगर वो हॉक्स फैलाते हैं तो उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो बॉयज़ लॉकर रूम से हमें यही सीख मिलती है कि आपको अपने बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी एजुकेट करना होगा, उन्हें संस्कारी बनाना होगा, क्योंकि आज के डेट में हम डिजिटल एविडेंसेस पे बात करते हैं। जो भी अरेस्ट होते हैं, जो भी कन्विक्शंस होते हैं, जो भी हमारा कोर्ट ऑफ लॉ जो डिसीजंस लेता है वो सारे डिजिटल एविडेंसेस पे बेस्ड हैं। तो अभी तक तो जो हम लोग सुनते आ रहे हैं यही है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं, कोई गवाही नहीं देना चाहता या फिर गवाहों को खरीद लिया जाता है पैसा या डर दिखा के। तो जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके साथ आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह बॉयज़ लॉकर रूम का एडमिन को अरेस्ट किया गया, इसी तरह अगर कोई भी अगर गलत एक्टिविटी करता है ये सोच के कि चलो हम मैनिपुलेट कर देंगे, हम बहुत पैसे हैं हमारे पास, तो वो सतर्क रहें और सुधर जाएं। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि कौन से 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन साइबर लॉ के। इंडियन साइबर लॉ मतलब जो भी हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं तो उसको गवर्न करने के लिए क्या है। तो उसका पहला चीज़ है कि जो हमारा साइबर लॉ है वो हमारा वैलिडेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को, उसे लीगल समझता है। दूसरा है कि ये ग्रांट करता है लीगैलिटी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट को। थर्ड है कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, मतलब डिजिटली आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर साइन करते हैं तो इसका इक्वल
इम्पोर्टेंस है। इसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सारे लेट डाउन है, कौन डिजिटल सिग्नेचर इशूइंग अथॉरिटी हो सकता है, ये सारे चीज़ हमारे लॉ में कवर किए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जितने भी तरह के आप इमेजिन कर सकते हो क्राइम्स जो ऑनलाइन हो सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलिंग टिल योर साइबर टेररिज्म। हर एक क्राइम्स को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया है, उसकी सज़ा भी अच्छी तरह से निर्धारित की गई है। फिफ्थ है जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे इंडियन साइबर लॉ का, वो ये है कि इसमें हम लोगों ने जो भी इंटरमीडियरी हैं उसका रोल बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है। कहने का मतलब कि अगर कोई फेसबुक है या कोई भी अगर हमारे यहाँ पे अगर बिजनेस कर रहा है, तो अगर कल को उनसे अगर डेटा मांगा जाता है तो दे कैन नॉट से कि विल नॉट गिव द डेटा, उन्हें डेटा देना पड़ेगा। साथ ही है कि कोई भी अगर ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, तो उन्हें भी सारा डेटा देना पड़ेगा। सो ये चीज़ है। और आप इस बात से क्यों आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज इन द आई ऑफ लॉ, सो यू शुड नो द प्रोविजंस ऑफ लॉ। साथ ही जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट वो होता है साइबर डिफेमेशन। तो ये साइबर डिफेमेशन कवर होता है आपका आईपीसी सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, 469 ऑफ आईपीसी एंड 506 ऑफ आईपीसी। अब डिफेमेशन में रोस्टिंग जैसे कैरीमिनाटी और ये करते हैं, या कुणाल कामरा करते हैं, अर्नब गोस्वामी करते, तो ये सब जो होते हैं तो अभी ये कॉमेडी में है, इसीलिए वो साइबर डिफेमेशन फाइल अभी नहीं कर रहे, दोनों ही चुप हैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल को हो सकता है कि इन्हें प्रॉब्लम हो और वो साइबर डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि डेंजर क्या है, कितना डेंजरस है। आप सिंपली एक वीडियो अगर प्ले करते हैं अपने मोबाइल में तो वो कितना डेंजरस हो सकता है, वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। अभी सोशल मीडिया जो सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, जो आपको बोलेंगे कि आप फ़ोटो अपना अच्छे से बना सकते हैं या आप अपने आप को ओल्ड एज में कैसा दिखेंगे, इस तरह का सोशल इंजीनियरिंग करके इसे ऐसे इंटरेस्टिंग लिंक करके आपको एपीके इंस्टॉल करवाएगा। और जब आप इंस्टॉल आप उसको कर लेते हैं, जैसे अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो उसके बाद आप उस फ़ोन के सारे एक्टिविटीज़ को आप किस तरह से अपने लैपटॉप से मॉनिटर कर सकते हैं वो आप देखिए।
ऑटोमेटिकली इसने डिसेबल कर दिया आपके प्ले प्रोटेक्ट को, तो आपका मैलवेयर जो है वो आराम से रन करेगा। अभी अगर जब आप जो भी अकाउंट है आपका बैंकिंग में, जो भी आप लॉगिन करेंगे, आप अपने मोबाइल पे कर रहे हैं, लेकिन आपका सारा डिटेल जो है वो हैक करके कंप्यूटर पे दिखेगा। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है जो भी बैंक डिटेल्स डाला गया था। अब जो आपने ईमेल अकाउंट में आप लॉगिन होंगे अपने मोबाइल से, आप जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे वो डेटा भी आपका हैकर आराम से देख पाएगा अपने लैपटॉप पे। यहाँ पे वो अपना पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड आपका देख पा रहा है। अभी कार्ड डिटेल्स डाला गया। कोई भी ऐप में कुछ भी आप डेटा डालेंगे तो वो भी आपका हैकर देख सकता है। ये आपका की लॉगर है। अब जो भी कीज़ आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं यूज़र आईडी पासवर्ड में, जो भी आप डालेंगे अपना की, वो सारा की लॉगर कैप्चर करके हैकर अपने लैपटॉप पे उसे देख सकता है। ये बताता है आपको कि आपको कितना सतर्क रहे। निकला था वो क्या था, एक फोटो लैब। कितने लोगों ने अपना फोटो उसमें अपना किया? एनी रिस्पॉन्स? अनिल, कैन आई हैव अ रिस्पॉन्स? आपने एक वीडियो बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, एक धाशु सा आपकी वाइफ ने बनाया था शायद, राइट? बहुत, मैडम। हाँ, तो बड़ा अच्छा सा फोटो आपने बनाया था। तो आपने पढ़ा उसका, आपने जब इंस्टॉल किया उसको, तो आपने क्या पढ़ा उसका पॉलिसी क्या है? और आपको क्या लगता है, आपने उसे एक्सेस दिया अपना गैलरी का, तो क्या उसने आपको वो पर्टिकुलर फोटो ही एक्सेस किया होगा? नहीं। जब आप इंस्टॉल करते हैं कोई ऐप, तो वो आपका पूरा गैलरी का पिक्चर जितना है सब उठा ले। कि अगर आपको चेक करना है कि आप कभी आपका अकाउंट हैक हुआ है कि नहीं, तो आप ये वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी है, इसमें मैंने डाला तो पता चला कि अभी तक इसका डेटा चोरी नहीं किया गया है। इसी तरह आप अपना ईमेल अकाउंट भी चेक कर सकते हैं कि कभी वो हैक हुआ है कि नहीं। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड कितना सिक्योर है। ये बहुत कॉमन पासवर्ड है, आप सभी ने गेस कर लिया होगा क्या है। तो वो पासवर्ड मैंने डाला तो तुरंत, अब इसी को अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा?
तो ये दिखा रहा है आपको कि अगर इसको हम ब्रूट फोर्स लगा के अगर इसको हम डिटेक्ट करना चाहें तो हमें 1 ट्रिलियन ईयर्स लगेगा। तो सिंपल जो आपको थंब रूल्स बताए जाते हैं पासवर्ड के लिए, जैसे मिक्स होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, जो नंबर्स हैं वो सीरीज़ में नहीं होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि टेबल्स होता है उनके पास, हैकर्स के पास, जिससे वो इजीली वो आपका रिवर्स करके वो पता कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है। नेट एसएच WLAN एक सिंपल सा एक है आपका कमांड, जिससे आप वाईफाई को पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो फिशिंग अटैक्स होते हैं वो ईमेल्स के ज़रिए ही होते हैं। तो हमें मेन ध्यान देना है बच्चों पे, सीनियर सिटीजन्स पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा न्यू है इस टेक्नोलॉजी के। जिस एज में हम लोग लिखना पढ़ना सीखते थे, बच्चे आज छोटे से बच्चे उनके हाथ में मोबाइल लैपटॉप्स है, तो उनको नहीं पता है कि उनको कैसे यूज़ करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो हमें उनको एजुकेट करने की बहुत आवश्यकता है। whois.net पे जाके आप जब भी कोई न्यूज़ देखते हैं, किसी भी वेबसाइट का डिटेल्स देखते हैं, तो आप यहाँ पे जाके चेक करें। whois.net पे जाएं, URL का नाम लिखें और चेक करें। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि किसने रजिस्टर किया हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड है। जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड.gov.in रजिस्ट्रार कौन है इसका, NIC ऑर्गेनाइजेशन कौन है रजिस्टर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई लोकल है, कोई ब्रांड है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। IP एड्रेस के बारे में आप जानकारी एपनिक पे जाकर देख सकते हैं कि वो IP एड्रेस कहाँ पे है लोकेटेड। IP लोकेशन आप चेक कर सकते हैं किसी भी IP को डाल के, iplocation.net पे जाके आप IP लोकेशन का जियोग्राफिक डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो अगर आप पता कर सकते हैं, मतलब अगर किसी व्यक्ति को आपका IP एड्रेस पता है तो वो आपका जियो लोकेशन पता कर सकता है। इसीलिए कभी भी अपने IP एड्रेस को रिवील ना करें। अगर कोई आपके पास मेल आता है, क्योंकि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि जो मैक्सिमम क्राइम्स जो होते हैं वो फेक जॉब ऑफर्स के होते हैं। तो जब भी मेल आपके पास आए तो वहाँ पे आप क्लिक करें शो ओरिजिनल पे, 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन आएगा। आप शो ओरिजिनल पे जाइए, उस मेल का हेडर लाइए, ऑनलाइन ईमेल ट्रेसर है साइबर फोरेंसिक का, यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए। और यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट का है इसीलिए ये रेफर कर रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे और भी हैं, आप उनके फेड़े में ना पड़े। क्योंकि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप अपना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट को दान करते हैं, तो जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी वेबसाइट पे जाएं, ये इस बॉक्स में अपना हेडर डालें और फिर स्टार्ट ट्रेसिंग करें, तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, उसका डिटेल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आपको अगर कोई आता है आपके पास थ्रेटनिंग मेल या कोई भी इस तरह का लुभावने ऑफर्स आते हैं, तो उसमें आप ईमेल हेडर को ज़रूर अपने पास सुरक्षित रखें, उस डर से उस मेल को डिलीट ना करें कभी। ग्लिफ अटैक है जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कोई भी वर्ड hp.com, तो आपको लगेगा कि hp.com का ही लिंक है तो हम क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हैकर्स क्या करते हैं, वो H का यूनिकोड वो चेंज कर देते हैं, जिसके कारण फिर वो आपको कहीं और लेके जाता है। वो ये कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जिस पे आप कॉल करें, जैसे *#21#। अगर आपको डाउट है कि आपको कॉल फॉरवर्डिंग आपके बिना इन्फॉर्मेशन के किसी ने ऑन किया हुआ, तो ये डाल करके आपको पता चल जाएगा। *62# अगर आप डायल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कॉल या मैसेजेस किस नंबर पे फॉरवर्ड किया गया है। और #002# डायल करेंगे तो आपके सारे फॉरवर्डिंग क्लोज हो जाएंगे। और आपको फ़ोन का अगर IMEI नंबर देखना है तो *06# डायल कीजिए। अब हम करें क्या जिससे हम फ़ोन का हैकिंग से रोक सकें।
तो आपका फ़ोन तभी हैक हो सकता है जब आप फ़ोन अपना किसी और को दें। तो इसीलिए कभी भी फ़ोन किसी और को ना दें, अपने पास ही रखें, 2 मिनट के लिए भी किसी को ना दें, और अपने डिवाइस को एनक्रिप्ट करके रखें। एनक्रिप्ट मतलब जैसे मान लिया आपने बहुत हैवी पासवर्ड डाल रखा है अपने लैपटॉप या मोबाइल में, लेकिन अगर वो आपका गुम जाता है कभी या चोरी हो जाता है, तो अगर पासवर्ड तो कैसे भी अगर कोई खोल भी लेता है तो आपका सारा डेटा तो आपका अवेलेबल है। पासवर्ड तो एक सिंपल ऑप्शन है, थोड़ी देर के प्रोटेक्शन है, लेकिन आपको वो डेटा को एनक्रिप्ट करके रखना चाहिए ताकि कोई अगर मिल भी जाए आपका डिवाइस तो वो उसका डेटा वो किसी काम में नहीं आए। ये हर एक आज के डिवाइस में, आजकल के डेट में जितने भी डिवाइसेस आते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या मोबाइल, सभी में ये फीचर अवेलेबल है। तो आप अपने डिवाइस को ज़रूर एनक्रिप्ट करके रखें। अपने सिम कार्ड को आप लॉक करके रखें। सेटिंग्स पे जाएं, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करें और फिर अपना सिम कार्ड को लॉक करें। जब भी आप पब्लिक प्लेस में हैं या भीड़ भाड़ के एरिया में हैं तो अपना वाईफाई और ब्लूटूथ को आप स्विच ऑफ रखें। जितने भी आपके सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको आप एनेबल्ड रखें। चार्जिंग, जैसे जनरली हमारा जब भी चार्ज कम हो तो हम किसी भी केबल में अपना फ़ोन अटैच करके उसे चार्ज करते हैं, लेकिन ये हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे USB केबल्स होते हैं जिसमें एक्सप्लॉइट्स रहते हैं और वो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल होके फिर आपके सिस्टम को हैक करता है। तो हमेशा इसे आप अवॉइड करें, अपने ही चार्जर से उसे चार्ज करें। एंटी मालवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंटली रन करें अपने सिस्टम में। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे अपडेटेड रखें। कभी भी कोई भी परचेज पब्लिक वाईफाई पे ना करें, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो अपने डिवाइस को आप फैक्ट्री रीसेट करें। और ये भी आप इंश्योर करें कहीं आपका सिम क्लोन तो नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सिम क्लोन्ड है? आपको अगर आप कॉल करते समय आपको कुछ आवाज़ आती है, डिस्टर्बेंस आता है, या फिर आपका फ़ोन आपने कुछ कॉल्स नहीं किए फिर भी बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं, मैसेजेस अजीब से आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सिम क्लोन्ड हो सकता है। आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें। और कभी भी अपने सिस्टम में किसी, जैसे हम क्या करते हैं कि मोबाइल में 10 एप्लीकेशंस खुले हैं, लॉग आउट नहीं करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। हमेशा लॉग आउट करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं जिसे हम यूज़ ही नहीं करते हैं, तो वैसे सारे अकाउंट्स को आपको डिलीट कर देना चाहिए। और आज के डेट में अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो तो हम सीधा गूगल पे जाते हैं, लेकिन हमेशा हमें गूगल पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार हमारे ब्राउज़र्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं और वो फिर आपको कहीं और लेके चला जाएगा। और जो भी मतलब जो अगर एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है सफारी। वो सफारी को यूज़ करें कि वो उसका प्राइवेसी पॉलिसी भी अच्छा है और वो ज़्यादा आपके डेटा स्टोर भी नहीं करता। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की। बहुत सारे फीचर्स आपको चाहिए होते हैं तो आप ब्राउज़र में बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसे आप अवॉइड करें क्योंकि जितना एक्सटेंशन आप डाल रहे हैं उतना आप वल्नरेबिलिटी को दावत दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि टेक्निकल तो नहीं है, साइकोलॉजिकल है, बट सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो मैं यही कहूँगी कभी भी डरे नहीं हारने से, क्योंकि यही एक पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बच्चों के अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट, कि अगर तुमने मुझे ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मेरा बात नहीं माना तो मैं तुम्हें एग्ज़ाम में ये ऐसे कर दूँगा। ये कोई भी डराता है आपको, तो इसीलिए डरना नहीं है। अगर आप कुछ भी आपको हानि होने वाला है वो आपको साइबर क्राइम विक्टिम अगर आप नहीं बने तो वो हानि चलेगा, इसीलिए डरना नहीं है कभी भी। और जितने भी आपके इमेजेस वगैरह आपको आते हैं तो उस पर आप क्लिक ना करें क्योंकि इमेजेस में वो प्रीलोड करके APK फाइल्स को ऐड कर दिया जाता है और अगर वो आप खोलते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल पे तो वो आपका मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड है तो अनचाहे रूप में
बच्चे और बूढ़े दोनों ही जो इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं वो इससे इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो हमें स्पेशल केयर रखना होगा सीनियर सिटीजन्स का। तो इसके रेमेडीज़ क्या हैं? रेमेडीज़ है हमारे पास है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिस पे अभी कंसल्टेशन चालू है, तो उसमें आपका पूरा कवर किया गया है कि किसी भी तरह का आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है, हेल्थ डेटा। तो एक कंप्लीट पैकेज है जिससे हम काफ़ी सिक्योर्ड रहेंगे। और इन केस आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आप cybercrime.gov.in पे जाके अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है 155260। यहाँ पे मैडम कुछ गवर्नमेंट एप्स भी गैलरी एक्सेस का परमिशन मांगते हैं, तो राइट क्या सारे राइट, एप्स? वेरी गुड क्वेश्चन अनिल। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, गवर्नमेंट एप्स हैं तो आपका गवर्नमेंट में एटलीस्ट फेथ तो है आपका। जैसे आप, मैं आरोग्य की ही बात करूंगी। आरोग्य बोलता है कि या भीम ऐप है मैम, जिससे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। हाँ, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। भीम ऐप में बहुत सारे फेक हैं, तो आप भीम ऐप का तो मुझे आइडिया नहीं है, अभी मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ, लेकिन आरोग्य का मुझे पता है। आरोग्य का है कि अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तब आपका डेटा स्टोर किया जाएगा। लेकिन फिर भी जहाँ भी आपको बात आ जाए कि डेटा शेयर करना है, बी वेरी केयरफुल। अगर, और मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अपना पर्सनल, सही बोला सर ने, लिनक्स इज सेफर और दूसरा आईफोन इज सेफर, ठीक है। तो आप उसके बाद भी आप चाहे तो सबसे बेस्ट वे है कि आप एक बैंकिंग का जो रखते हैं अपना मोबाइल वो अलग रखिए, ईमेल अकाउंट अलग रखिए, फ़ोन नंबर अलग रखिए और सेफ रहिए। ओके, सो आई कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम शेरिल अग्रवाल. So I would like to request Cheryl Agarwal, kindly go ahead with your question, please. पहला क्वेश्चन इज वेरी जनरल कि हाउ यूजफुल इज फॉर्मेटिंग when you think that your phone has been hacked or it has some malware in it. How useful is formatting? Yes, it is very useful. It is advisable whenever you are in a doubt that some malware has infected your system, your phone or anything. You should make sure that you format your phone. Rather, you should factory reset it. That will be better option. Okay. So that will help in malware and viruses. Will that also help if it has been hacked? Yeah. That's actually, see, why will somebody hack you? Tell me. Why will For the data. Yeah, for the data. Yeah. And how can I get the data? You will not give me your phone. You will not hand me over your Yeah. phone. So I have to Yeah, trick yeah. you somehow so that I can inject that malware. Hacking means unauthorized access to something that I am not authorized to. So how can I have access to something that you are authorized to handle, but I want to, like, you won't allow me? Will you give me all your contacts? No, never. So the hacker tries to get all your contacts through such malicious coding kind of stuff. So it's a very good idea to format your device. Okay. Second question I had is that hypothetically, if a friend of mine, her friend has been hacked, and I'm using her personal hotspot, does that transfer to me as well somehow? Of course. Very good question, because you are using her hotspot. So since your friend has been hacked, definitely your data would be also be hacked. Okay, it depends on what kind of websites you have visited. Supposing if you have visited secured websites, so he will just come to know that yes, following are the websites that she had visited. But in case you visited some insecure website, you know the meaning of insecure, which is not encrypted, HTTP, it doesn't have a S. So if you visited such kind of, then it's lots of chances that even you will lose lots of data from your system. So you should, it is advisable, never use public Wi-Fi or anybody else's Wi-Fi, because they can always see what all things you are browsing at least. Okay. So public Wi-Fi who have passwords with them, are those ones safe or just without password ones? See, password is like, as the technology is advancing, even the criminals are advancing. Now I told you HTTP is not safe and HTTPS is safe, right? So now criminals also, they know that people will not visit if I will not put a certification on my website. So they are buying certifications, spending another 3,000-4,000 rupees and getting it certified.
So we should be careful about why do we need to. First of all, if you are visiting any website, then you should make sure why am I visiting. So, and coming to your question, you asked if there's some Wi-Fi has password. It doesn't make any difference. I can, to look authentic, I'll put a password to my hotspot so that you feel okay, madam is sharing the Wi-Fi only with me. But no, please avoid. Today data is not such a big deal that you should use anybody else's data. So restaurants and cafes are equally Exactly. Actually, these are all honeybee traps to trap people so that. Why do you have you must have heard of these apps, right? Through which you can get your photo is in yellow color, blue color. Yeah. So have you ever read through the policies? If you read the policy, they'll tell you that they'll have access to your gallery. Now your gallery contains many sensitive pictures. So if you are giving them access to the gallery, means all your pictures, whichever you have in your phone or your device, that would be accessible to them and they can do anything with that data, because you yourself have agreed that I have no problem if you share my pics. So in case you want to use such features, first thing you should do, you should remove all such pics from your device, store it somewhere else, and then only that particular photograph you can use. So you have to be cautious to what you are sharing. The last question I had was about identity theft. How does that happen and how can we prevent it? Very good question. I mean, actually, I'm planning to have another webinar on this topic as well, only, that how to protect identity theft, because it is a very, very alarming issue that we need to wake up to, because today it's so easy to get pictures of somebody and get the videos of somebody through social media, and these criminals, they are using this social media platform for all such crimes, because we post everything. We are today at the cafe coffee day, we are watching a movie, I'm going to this. So if somebody goes through your social website, they'll be able to know when's your birthday, who is your husband if you are married, who is your in-law, who is brother-in-law, who is your daughter, son, everything. So it's very easy. He can see your friend list also. Even if you've hidden your friend list, from the comments he can find out who are all your friends. So he can create a fake identity and create a fake social network profile in your name. So because the cases are rising, I discussed it in my presentation also. To stop this, many people have filed a plea in Supreme Court that now there should be KYC even for opening social accounts. And another important thing that you said, that if somebody opens, it is a very, very it's a very prominent problem these days. I discussed in my PPT also. I changed the name of the girl, but it is genuine case when the girl was just merely 13 years. Somebody was completely following her, and then that guy, till by the age of 21, that girl, she was so harassed, she went into mental trauma and she had to take medical help. She had to change her school. So we do not realize the level of problem that the teenagers go through, because this is the age that when you're not knowing properly what is do's and don'ts, you don't know whom to talk to. So they are very much vulnerable, and this is the age that we should take care of. Even this boys' locker room, all the girls who were molested in that, they were all in the age of 13. So see, criminals will never have any ethics. So prevention is better than cure. That we need to not to share our data. We need to bring awareness. See, you can, like you yourself, Cheryl, like you can educate 10 people. They in turn will educate. So we need to spread the awareness. It's not about technology. It's not about anything else more than awareness. And especially we should, parents especially, should create an environment that children are able to share everything with them very openly without being reluctant. They should be able, like I really appreciate my daughter in this case. I have like taught her never to hide anything from me and never to do anything hidingly. This is one thing that we should teach our children. Never do anything hidingly. If somebody is telling you तुम कर लो बेटा, पापा मम्मी को नहीं बताएंगे, तो आप वो काम कभी मत करो बच्चों, है ना? जैसे मेरी बेटी मेरी बता रही थी, कभी उसके पापा मेरे एब्सेंस में लेके गए थे मॉल में,
तो एक और लेडी आ गई वहाँ पे और उसके पिताजी ने मना किया था कि भाई चिकन मत खाना। और वो लेडी आके पापा जब चले गए तो बोलते बेटा खा लो चिकन, मैं पापा को नहीं बताऊंगी। तो आई रियली अप्रिशिएटेड माई डॉटर, उसने वो खाया नहीं और मुझे डायरेक्टली बताया कि मम्मा आज एक आंटी ने मुझे ऐसा। तो मैंने उनको यही बताया कि बेटा जो भी व्यक्ति आपको गलत करने को बोलता है, छिपाने को बोलता है, उस व्यक्ति का रिपोर्टिंग कीजिए, अपने पेरेंट्स को कीजिए, क्योंकि अभी तो वो पेरेंट्स तक ही जा सकते हैं ना। सो थैंक यू शेरल, यू हैव इंडीड, आपके क्वेश्चंस में आपने एक पूरा एक मास का क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड विद इट। थैंक यू शेरल। Thank you. So we have a question coming up from Miss Anshu Priya. So Anshu Priya, what's your question? Hello, Mini ma'am. I just wanted to ask that what are the preventive measures that young girls should compulsorily take while concerning with the cyber crimes in which they get trapped online through Facebook or through some messaging apps like WhatsApp and some other Snapchats and something like that. So what are the preventive measures being on social media to protect protect yourself from being trapped into these scams of cybercrime? Okay. Okay, Anshu, you have asked a very genuine question which is very much relevant to the webinar. See, young, when you say young, that means they are not so educated, they do not know much things about the society. So whenever I would like to advise all the young people, see, if somebody is trying to be too good to you, please be careful. And any requirement if you have, if you want something, if you want to share something, go and share it first with your parents, teachers, friends, good friends. Okay, and do not trust anyone easily on the internet, because everybody may not be true. Somebody might be playing with your emotion, because we have these days cyberbullying, cyber stalking. You never know who all are spying over you, who are having a मैम जी हेलो जी जी सुनाई दे रहे हैं, बोलिए। जैसे कि हम लोग किसी बोलिए। जैसे फोन हम लोग किसी को बनाने के लिए देते हैं, जैसे हाँ, कि good question, हाँ। खराब हो गया तो वेरी गुड। इसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? प्रिकॉशन यही है कि उसके पास छोड़ना नहीं है, आप वहीं खड़े रहो, बनाओ, बोलेगा कि छोड़ के जाइए, बोले कि आप रहने दो, ठीक है। और ना ही ये है कि नौकर चाकर को दे दिया, आप मत दीजिए। फॉर्मेट देना भी है तो 3-4 बार फॉर्मेट करके दीजिए, बेस्ट है कि मत दीजिए। देना है तो फॉर्मेट करके दीजिए, ठीक है। और बनाने के लिए तो कहीं छोड़िए मत। ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे हमारे साइबर थाना में। एक लड़की का ही था, उसने फ़ोन दिया था और उस बंदे ने ही फिर उसको हैरेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? आवा मैडम, How frequently we can change our passwords? see, password you should keep on changing. Rather best option is do not log in through different devices. अलग अलग किसी के भी फ़ोन पे आप मत कीजिए। It's a very good question you have asked. You should always frequently change your password. The catch is, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको याद भी तो रहना चाहिए, ठीक है। तो वो आप तो करिए ही चेंज, लेकिन साथ में ऐसा भी रखिए कि आपको कहीं लिख के नहीं रखना पड़े, सारा कुछ आपको याद रहे। और सिंपल जैसे @1234100 तक लगा दीजिए, वो सेफ नहीं है। टेबल्स बने हुए हैं हैकर्स के पास, जिसको मालूम है कि वो क्रैक 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस में तो बिल्कुल नहीं देना है। मिनी, जैसे मैं मिनी हूँ, मेरा बर्थडे क्या है, मैरिज क्या है, ये लोग बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। आभा मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी? थैंक यू आभा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आभा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना है मैडम आपको? पूछना चाह रही थी मैम कि आजकल साइबर क्राइम में बच्चे लोग ज्यादा फंस रहे हैं, राइट इसका कारण क्या? जी, बहुत सही बोला मैडम आपने। कारण तो यही है कि वो बहुत छोटी सी उम्र में उनको मिल गया है। हम लोग सोचिए बुढ़ापे में आके मोबाइल ये सब पकड़ रहे हैं, वो लोग बचपने में ही ये सब कुछ मिल गया है, तो उनका ज्ञान उतना बढ़ा नहीं है। वो मेरी बेटी है, तो हम अगर कुछ बोलेंगे तो वो वेरीफाई करती है यूट्यूब, गूगल पे, तब जाके हमको, आई एम द लास्ट पर्सन दैट शी ट्रस्ट, तो उनको लगता है। तो वही बच्चों को यही समझाना है कि बेटा यूट्यूब इज नॉट ऑल अबाउट ट्रू, देयर आर मेनी फेक थिंग्स आउट देयर। एनीवन एल्स? मैम ये पीपीटी मैम मिल सकता है मैम? बिल्कुल मिल जाएगा।
I'll share. मैम जैसे कि हम लोग जैसे कि एक भैया बोल रहे थे ग्रुप है ना कि हमारा व्हाट्सएप उसमें- ग्रुप, उसमें हम डाल देंगे, ठीक है? मैम मैम हमें भी चाहिए। कि हाँ मैडम, आपको पर्सनली दे देंगे मैम। हाँ, मैडम Okay, kindly add me to the group. या श्योर। एक्चुअली दैट ग्रुप मैम इज, जैसे कि हाँ। थाने में जाते हैं थाने में जाते हैं तो एक भैया बोल रहे थे कि हम मोबाइल को क्लोन बना के हम क्रिमिनल्स को ट्रैक करते हैं। हाँ वही देखिए उसका जब जो भी कॉल हाँ। आता है या फिर जो भी देखिए हम बता रहे हैं आपको, क्लोन तो करते हैं क्योंकि डिजिटल जो आ गया एविडेंस उसको छूछा नहीं कर सकते। अगर हम उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब्त किया गया वो फ़ोन, उसके बाद अगर हम छू भी देते हैं मोबाइल को तो वो कोर्ट में इनवैलिड हो जाएगा। यही कारण है कि इतने सारे केसेस पुलिस अपना पसीना बहा के चोर को पकड़ती है लेकिन चोर बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एविडेंस फिर एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। कोर्ट में अगर मोबाइल सीज हुआ आज और आपने कल अगर छू लिया मोबाइल को तो वो बेकार हो गया। इसीलिए उसको क्लोन करके फिर उसको स्टडी किया जाता है। क्लोन तो मतलब मैम क्लोन से कुछ बचा जा, जैसे कि हम लोग अगर कोई भी किसी के हैंड में चल गया जिसको क्लोन वाला आइडिया है मैम, हाँ तो वो तो उससे हम लोगों को पता सकता है कि मेरा फोन क्लोन हुआ है कि नहीं। हाँ, अगर सिम का बात कर सकते हैं हम, सिम क्लोनिंग अगर हुआ है आपका, ठीक है, इसीलिए तो फ़ोन को अच्छे से रखना चाहिए और ज़्यादा डेटा फ़ोन पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है? और फ़ोन क्लोनिंग तो करेगा तो आपका डेटा क्लोन करेगा, ठीक है? वो तो डेटा आपको संभाल के रखना है। दूसरा सिम क्लोनिंग होता है, और आपका अगर मोबाइल कहीं दूर से, जैसे मैंने कहा, रिमोटली कोई एक्सेस कर रहा है तो उसको आप पता चलेगा। अगर आपका फ़ोन रखा हुआ है और गर्म है तो मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम है। आपको कॉल करते हैं, कुछ आपको खर खर कुछ आवाज़ आता है तब प्रॉब्लम है। मैसेजेस कुछ अटपटे से आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है? बिल्स अगर उल्टे पुल्टे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना है, जी मैम। ठीक है? मैसेज आता है मैम लेकिन वो सब बाकी नहीं होता। मैसेज किसी भी एसएमएस को उठाना नहीं है। सो एनी मोर क्वेश्चन, बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 minutes ओनली। एनी वन? एंड किसी को कुछ पूछना है? No ma'am, thank you so much. Okay, thank you. I would like to thank again Avni madam, sir, Prabhat Ranjan sir, Dipti, Anil ji, Kishore ji, Abha Sinha madam, and Anshu, Priya, Dharmesh ji, Saurav ji, Cheryl ji, Kishore ji, everyone. Thank you everyone.